Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are safe at home. So, my dear student, I am Munish Yadav, PGT Economics from Suraj School Bhiwadi, again here to discuss with you some more topic from chapter 11 as we are studying chapter 11 theory of supply. So, my dear student, let's proceed for the day. Yes, today our topic is supply curve. As yesterday we had completed about the supply schedule, supply and quantity supply. Today we will discuss about the supply curve. So my dear student, as earlier I told you, when we show anything, any information on graph, इट बिकम्स कर्व. जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं वो कर्व बन जाता है, और अगर हम उसे टेबल पे शो करते हैं तो वो शेड्यूल बन जाता है. सिंपल. सो सप्लाई कर्व इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल. जो टेबल आप बनाओगे उसी को अगर आप ग्राफ पे प्रेजेंट कर रहे हो, it becomes supply schedule. Okay, clear? So it has two part. इसके भी दो पार्ट है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, it is a graphical presentation of supply curve of an individual firm in the market. individual firm means एक ही फर्म की सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल को आप ग्राफ पर शो कर रहे हो, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. लुक एट हियर. फर्म ए, मार्केट सप्लाई कर्व. Supply curve, market supply curve is a graphic presentation of market supply schedule. Okay, it means supply of all the firms in the market. मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं उनकी सप्लाई को आपने प्रेजेंट किया है ग्राफ पर. इट बिकम्स मार्केट सप्लाई कर्व. ओके, क्लियर? सो diagrammatically supply curve is here. Suppose here are the two firm A. So this is the individual supply curve of firm A. This is individual supply curve of firm B. And when we take firm A and B both simultaneously, एक साथ अगर हम उन्हें शो कर दे दोनों को, तो it becomes market supply curve. Clear, my dear students? Yes, dear. Okay. Same price 10, and here price 10, but the quantities, A firm supplying 10 units at that price, or B is 5, the total is 15. Clear? So look, like that you can show here. Yes. Now next topic is supply function, determinants of supply. What is supply function? As far we are studying about the theory of demand, we discuss about all that determinants of demand. हमने डिमांड के डिटरमिनेंट्स पढ़े थे. सेम हेयर कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. ऑल फैक्टर्स आर नोन एज determinants of supply. So look at here. Supply function studies the functional relationship between supply of a commodity and its various determinants. ओके, इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप बन रही है. ओके, सम फैक्टर विल इंक्रीज द सप्लाई, सम फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन सप्लाई. तो जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो उन फैक्टर्स को ही हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं. ओके, और फंक्शन भी बोलते हैं. सो हियर आर द सप्लाई फंक्शंस. Sx supply of commodity, X commodity, और F means function, functional relationship. Px own price of the commodity, Pr price of related goods, Nf number of firms, G goal of the firm, Pf price of production factors, T stand for technology, E for expectation of supplier, and Gp means government policy. So my dear student, total 8 factors are here. Okay, 8 factors are here. And one more thing that I want to discuss with you in the beginning, because again and again I will repeat the sentence. Px means own price. This is the direct factor which affect the supply. ये सीधे सीधे सप्लाई को अफेक्ट करेगा. And all 7 are the other factors. ओके, जब भी हम लो ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो बहुत हमें याद रखना है इस चीज़ को. पी एक्स डायरेक्ट फैक्टर होता है, और बाकी जितने भी 7 फैक्टर्स है, पी आर, एन एफ, जी, पी एफ, टी, ई एक्स, जी पी, ऑल आर द other factors. Okay, so now one by one we will study that how they will impact the supply. Yes, dear student, look at here. Own price of the commodity, it means px. Px directly related with the supply of commodity. As price increase, supply of commodity will increase. As price decrease, supply of commodity will decrease. क्योंकि हाई प्राइस पर एक प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा, सप्लायर सप्लाई करेगा, कम प्राइस पर नहीं करेगा, क्योंकि हाई प्राइस पर ही प्रॉफिट ज़्यादा होता है. सो ओन प्राइस सीधे है,
सप्लाई के साथ सीधा रिलेट होगा, पी एक्स इंक्रीज होगा, एस एक्स क्या होगा, बढ़ेगा, पी एक्स कम होगा तो एस एक्स भी क्या होगा, कम होगा, डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर, रिमेंबर एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। पी प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स, इट मीन्स पी आर, okay. We are not dividing as we are dividing the other goods into categories complementary and substitutes. Here we are studying only simple thing. Related goods means ऐसी commodity जो हमारे similar है, जैसे we are dealing in coffee और suppose टी की बात कर ले, या we are dealing in टी, हम टी में डील कर रहे हैं और कॉफ़ी हमारे लिए अदर फैक्टर्स हैं। इसमें सिंपल है बेटा, सिंपली यू हैव टू लर्न इफ़ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीज़, अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो हम कुछ टाइम के लिए अपनी सप्लाई को कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर्स आएंगे, और अगर हम सेम प्राइस पर करेंगे तो हमें बेनिफिट ही नहीं होगा, तो हम भी कुछ टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए सप्लाई को होल्ड करेंगे कि जैसे ही थोड़ा सा और डिमांड बढ़े तो हम भी थोड़ा सा प्राइस क्या कर सके, बढ़ा के प्रॉफिट कमा सकें। ओके, सो जैसे ही रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे हम भी सप्लाई को कम कर देंगे, और जैसे रिलेटेड गुड्स के प्राइस कम होंगे अब तो हमारे सारे कंज्यूमर उधर चले जाएंगे, सो हमें क्या करना होगा, फटाफट सेल बढ़ानी होगी। क्लियर, तो हम फटाफट से सप्लाई कर देंगे। तो दो ही चीज़ें याद रखनी है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो आपको सप्लाई कम करनी है, और अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस कम हो रहे हैं तो आपको सप्लाई एकदम से बढ़ा देनी है। क्लियर, नेक्स्ट, नंबर ऑफ फर्म्स। as you know, number of firms increasing, supply will increase, और number of firms decreasing, supply will decrease। number of firms बढ़ने से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, और number of firms अगर कम हो गई है तो प्रोडक्शन भी कम होगा और सप्लाई भी कम होगी। सिंपल। गोल ऑफ द फर्म, बेटा एवरी फर्म हैज़ टू टाइप्स ऑफ गोल, हर फर्म के दो तरीके के गोल होते हैं। वन इज़ सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेकेंड इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब डिपेंड करता है कि फर्म का गोल क्या है। अगर फर्म का गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, की ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, सो एट एनी प्राइस फर्म विल सप्लाई, उसके लिए कम ज़्यादा प्राइस कुछ मैटर नहीं करता, सप्लाई सिर्फ इंक्रीज़ होगी। और ऑन द अदर हैंड, इफ़ द फर्म्स गोल इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो सिर्फ हाई प्राइस पर सप्लाई बढ़ेगी, लो प्राइस पर सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल प्रोडक्शन फैक्टर्स इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड डिस्कस, आपको रिमेंबर है या नहीं है, बट रिकॉल अगेन। फैक्टर्स मीन्स एनी फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल या विच इज़ हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एवरीथिंग, रॉ मटेरियल, ऑल आर द प्रोडक्शन फैक्टर्स, क्योंकि ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब अगर ये हमें हाई प्राइस पर मिलेंगे तो क्या हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर इंक्रीज, अगर प्रोडक्शन फैक्टर का प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई विल डिक्रीज, हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। और व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर डिक्रीजेज, अगर ये चीज़ें हमें सस्ते में मिल रही है, लैंड, लेबर सब सस्ते में, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और सप्लाई भी ज़्यादा होगी। सिंपल। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इफ़ अ प्रोड्यूसर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कम इनपुट में भी ज़्यादा आउटपुट बन सकता है। लेकिन अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर एडवांस टेक्नोलॉजी। क्लियर। बिजनेस एक्सपेक्टेशन, बिजनेस एक्सपेक्टेशन टू टाइप्स बेटा, देर आर द टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन, बुलिश एंड बियरिश। ओके, बुलिश मीन्स अच्छी एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में लग रहा है कि डिमांड बढ़ेगी तो द सप्लाई विल इंक्रीज़, अब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगी। बट अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि फ्यूचर में डिमांड कम होगी हमारे प्रोडक्ट की, तो हम सप्लाई भी कम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कम करेंगे तो सप्लाई भी कम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मीन्स द टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल, हमारे फेवर में है या फेवर में नहीं है। अगर फेवरेबल है तो हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, और अगर अनफेवरेबल है, जैसे सपोज एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्शन पर हाई टैक्स पे करना पड़ रहा है। एक्साइज ड्यूटी मीन्स प्रोडक्शन टैक्स। अब प्रोडक्शन पर ज़्यादा टैक्स हो तो हम बनाएंगे भी कम, ताकि टैक्स कम देना पड़े। ओके, सो इन दैट केस सप्लाई विल डिक्रीज। क्लियर। तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फेवरेबल देन सप्लाई विल इंक्रीज, और if the government policies are unfavorable then supply will decrease. So my dear student, it's all about today. You have to do all the questions which we have discussed in your fair notebook, and beta for doubts and queries you can call me and send messages also, and please try to connect with the Zoom classes sharp 2 p.m. Today is your Zoom class, so be connect there. Okay, yes, God bless you.